In today's class, we are going to discuss some of the basics. This unit deals with circuit analysis, and in previous class, I had explained that circuit analysis is about calculation of voltages and currents. So today we are going to see some fundamental definitions related to circuit analysis. So before we start, let us quickly review what we had studied in the last class. So we had discussed a bit about electric charge. We had defined electric charge as the intrinsic property of fundamental particles of nature. हमने ये भी कहा था कि fundamental particles of nature क्या हैं? The particles with which the matter that we see in nature is made of. So हमने देखा कि अगर if we go on breaking some matter, then we get molecules. Molecules can be further broken down into atoms. Atoms can be broken down into a number of subatomic particles, and some examples of these particles are electrons, protons, neutrons, positrons, and numerous other particles जिनके बारे में हमें fully we don't have the full complete knowledge of all the particles. So these are the particles like electrons, protons, etc. And what happens due to this property is these particles, they interact with each other, right? So due to this property, these particles, they interact with one another. और ये इनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है, ये इंटरेक्शन होता है through the medium of force, right? So they exert force on each other. By exerting force, और ये जो force होती है, that can either be attractive or repulsive. So electric charge को हम define करते हैं as the intrinsic property of fundamental particles of nature, due to which they interact with one another by exerting attractive or repulsive force, right? Electric charge को generally हम represent करने के लिए हम letter Q use करते हैं, small q और capital Q, and it is measured in coulombs. तो जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज को का नेचर, ये फिनोमेना जब हम एनालाइज करते हैं, तो हम इसमें ये देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, दैट इज ऑफ टू टाइप्स. राइट? तो ये जो चार्ज का जो दो टाइप्स हैं, ये हमें कैसे मालूम चला? ये हमें ऐसे मालूम चला कि जो फोर्स है, दैट कैन आइदर बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. That is why we said that कि charge is also of two types. और ये दोनों types ऐसे हैं कि वो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं, right? तो जब ये एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं, तो हम इनको जो नेम्स हम इनको दे रहे हैं, प्लीज एडमिट ऑल द स्टूडेंट्स. मैंने सारे डोंट let the student keep waiting in the waiting room. So sir, I have admitted all the. Okay, some of them are calling me on phone, so please admit them. So हम क्योंकि वो उनका नेचर बिल्कुल अपोजिट है, तो हम कोई भी अपोजिट नाम उनको दे सकते थे, राइट? हम एक को कह देते रेड और एक को कह देते ग्रीन, है ना? हम एक को कह देते यस और एक को कह देते नो. लेकिन हमने जो नाम चुना, हमने कहा कि हम एक को कहेंगे पॉजिटिव और एक को हम कहेंगे नेगेटिव. तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव नॉमिनेशन है, ये सिर्फ एक
नेचर को शो कर रहा है कि दे आर अपोजिट टू ईच अदर, राइट? सो वी से दैट चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इनमें से कई सारी चीजें आप पहले भी पढ़ चुके हो, सच एज द लाइक चार्जेस, they repel each other, and unlike charges attract. तो अब हम क्या करते हैं कि ये प्रॉपर्टी जिस पार्टिकल में है, फॉर एग्जांपल आई हैव दिस पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल इज हैविंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग अ चार्ज, तो हम क्या कहते हैं, इस पार्टिकल को ही हम चार्ज कह देते हैं। एक्चुअली में इस पार्टिकल को हमें कहना चाहिए चार्ज्ड पार्टिकल, लेकिन हम अपनी लैंग्वेज में चार्ज पार्टिकल इज एज गुड एज चार्ज, लेकिन एक्चुअली में चार्ज इज अ प्रॉपर्टी, इट इज नॉट अ पार्टिकल। द पार्टिकल विच इज हैविंग दैट प्रॉपर्टी, अब हम उसको भी चार्ज कह रहे हैं। तो जब मैं कहता हूं कि चार्ज इज फ्लोइंग, इट मीन्स दैट अ पार्टिकल विच इज हैविंग दिस प्रॉपर्टी इज फ्लोइंग, राइट? तो ये जो फोर्स है, जो हमने कहा कि अट्रैक्टिव या रिपल्सिव हो सकती है, दिस फोर्स इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। ये लॉ हमें मालूम है फॉर पॉइंट चार्जेस, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the magnitude of these charges, inversely proportional to square of the distance between them, and it is also dependent, this force is also dependent on the medium in which we are placing these charges. तो ये फंडामेंटल चीजें आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, so this is just a review. Now हमारा जो कंसर्न है यहाँ पर, that is with flow of charge. When a charged particle flows, उसके हम बहुत सारे यूज कर सकते हैं फिर, राइट? सो दिस फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम कन्वेंशनल डेफिनेशन देखें तो हम कहते हैं कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। नेगेटिव चार्ज का फ्लो भी इलेक्ट्रिक करंट होगा, बट वो एक्चुअल फ्लो है, ये कन्वेंशनल फ्लो हम इसे कहते हैं, right? So flow of positive charge is called electric current. Electric current is represented with I, small I or capital I, and it is measured in amperes. मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं I। जब ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू चेंज हो रही है तो हम हमेशा स्मॉल लेटर यूज करते हैं, which is as good as saying that it is a function of time t, और इसको हम लिखते हैं dq by dt, the first derivative of net charge, right? So charge is always measured at a point, it flows through that point, right? So the question arises, हमने कहा flow of charge हमारे लिए बहुत काम की चीज है, सारे सर्किट्स में हम इसी से रिलेटेड एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चन उठता है वो उठता है व्हाई डज चार्ज फ्लो? What makes a charged particle move from one point to another point? So because of potential difference. Potential difference. Potential difference. Good. Cell connected. It is between it is due to the potential difference between two points. तो जब हम कह रहे हैं कि वो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब दो पॉइंट के पोटेंशियल्स हैं और उनका डिफरेंस है, राइट? सो वी आर सेइंग दैट चार्ज फ्लोज ड्यू टू potential difference between 2 points in that circuit, right? So the question is, what is potential? Work done. Work done, good. So Or work kuch done bhi? in taking one coulomb. Work done in taking the work charge from done infinity to that Okay, point. okay. to a particular point. Okay, तो हमने इसकी Work जो done per डेफिनेशन unit पढ़ी है charge. वो हमने Work पढ़ा done है per कि unit charge. yeah, the amount of work Energy done, required to move a unit charge.
right. The From work infinity to done in moving a unit charge from a point at infinity. infinity to a given point जहां पर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं in a field, right? ये ऐसा हमने इसको पढ़ा हुआ है, that is the definition that we have read, और इसी से हमने फॉर्मूले भी बनाए थे, इंटीग्रल फॉर्मूले। लेकिन हम इसकी आज जो डेफिनेशन पढ़ेंगे दैट इज मोर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल कंसिडरेशन फ्रॉम एन इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज पोटेंशियल, ठीक है? सो पोटेंशियल को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जब भी हम फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा ही आएगा। व्हेन आई एम सेइंग दैट वन चार्ज इज अट्रैक्टिंग अनदर चार्ज, तो उनके बीच में फिर देयर इज एनर्जी स्टोर्ड, राइट? अगर दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आई हैव अ चार्ज एट दिस पॉइंट ए, लेट अस से दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, और एक चार्ज है ये बी, इट इज अ नेगेटिव चार्ज, और ये दोनों एक दूसरे को अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज को ए पर रखने के लिए और नेगेटिव चार्ज को बी पर रखने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अगर हम एनर्जी नहीं देंगे तो क्या होगा, ए और बी एक दूसरे की तरफ आ जाएंगे, राइट? सो ये वाली जो एनर्जी है जो हमें बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी टू कीप द चार्जेस एट देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है और हमें बहुत सारे एग्जांपल्स भी मालूम है। So let us define potential energy. It is the energy acquired by a system by virtue of its configuration. Energy हमें मालूम है, the capacity to do work is called energy, right? तो यहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनमें से जो सबसे जरूरी हमारे लिए वो है सिस्टम और दूसरा है कॉन्फ़िगरेशन। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। So I am representing this circle, this is earth, और हमारे पास एक स्टोन है, राइट? दिस इज मास। ये स्टोन इस अर्थ पर रखा हुआ है, हम कहेंगे देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी। ये कॉन्फ़िगरेशन है, राइट? अब हम इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देते हैं। मैंने इस स्टोन को रेज कर दिया टू अ हाइट h, तो मैंने क्या किया, मैंने कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया है इस सिस्टम का, राइट? हमने कैसे डिफाइन किया था, हमने कहा कि एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ सिस्टम। सिस्टम का मतलब है कि वहां पर कम से कम दो कंपोनेंट्स होने जरूरी हैं, तभी वो एक सिस्टम बनेगा, राइट? अगर अकेली अर्थ होगी तो ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर नहीं होगी। दैट स्टोन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, राइट? तो ये जो सिस्टम बना जिसमें अर्थ और स्टोन दोनों हैं, तो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो इस सिस्टम में आएगी, राइट? तो मैंने क्या किया, इस स्टोन को रेज किया टू अ हाइट h, और अब मैंने क्या किया, किसी को यहाँ बिठा दिया। अब यहाँ कौन बैठेगा, मैं ही बैठूंगा, राइट? मतलब तुम लोगों की मेजॉरिटी है, सो आई विल बी द वन हु विल मेड टू सिट हियर। और मुझे बिठा के अगर इस स्टोन को ऊपर से नीचे गिरा दिया जाए मेरे सिर पर, तो दिस स्टोन विल डू सम यूजफुल वर्क, राइट? या इट विल बी यूजफुल बिकॉज उसके बाद क्लासेस नहीं होंगी फिर हमारी। सो नाउ दैट बिकॉज दैट स्टोन हैज एक्वायर्ड एनर्जी and it is doing some useful work, that energy is known as potential energy, right? तो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये समझना है, मैं यहाँ पर ये एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ इतना, क्योंकि जो नेचुरल क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठना चाहिए वो ये उठना चाहिए कि ये हम एक नई टर्म क्यों डिफाइन कर रहे हैं पोटेंशियल, जब हमारे पास एक टर्म थी ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाई वी आर गोइंग फॉर अ न्यू थिंग कॉल्ड पोटेंशियल? सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट थिंग। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहली चीज
पोटेंशियल एनर्जी जब किसी सिस्टम में आती है तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन का चेंज होना जरूरी है। किसी एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हो सकता है उस सिस्टम में कोई पोटेंशियल एनर्जी ना हो, जैसे कि अगर इस स्टोन को अर्थ के ऊपर रख दिया जाए। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हैं, वी आर रेजिंग द स्टोन टू अ हाइट h, वी आर चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन, तो पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी। अगर बच्चे इससे भी सेटिस्फाइड नहीं है कि सर को हमने नीचे बिठा दिया और पत्थर छोड़ दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, उस स्टोन को और ऊपर उठा सकते हैं, राइट। h1 और ज्यादा हाइट तक उठाओगे, ज्यादा अच्छा पोटेंशियल एनर्जी और ज्यादा उसमें स्टोर होगी और जो यूजफुल वर्क होगा वो और अच्छे से होगा, राइट। मतलब along with the head the whole body will be crushed, so useful work will have more effectiveness here. So as you are changing the configuration, the energy content of the system is changing. ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करने के लिए we need a system. System is required for storage of energy. लेकिन अगर ये सिस्टम नहीं भी होता, यानी ये स्टोन अगर नहीं भी होता, तो स्टिल अर्थ would have still had the tendency to pull objects towards it, है ना। अर्थ की जो टेंडेंसी है कि चीजों को अपनी तरफ खींचने की ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वो टेंडेंसी हमेशा रहती, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि यहाँ पर कोई स्टोन है या नहीं है। इसीलिए हमने क्या किया, हमने एक नई टर्म हमने देखो, सबसे पहले यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट किया। पोटेंशियल एनर्जी हियर इज mgh, where m is the mass of the stone. अब अगर ये मास नहीं भी हो यहां पर, तो भी अर्थ विल हैव द टेंडेंसी टू पुल दिस स्टोन टुवर्ड्स इटसेल्फ, राइट। तो ये टेंडेंसी को हम शो करना चाहते हैं। वी डोंट वांट अ सिस्टम, दिस पोटेंशियल एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। हमारा इंटरेस्ट सिस्टम में नहीं है, क्योंकि सिस्टम चेंज हो जाएगा। सिस्टम नहीं भी होगा, अगर स्टोन नहीं भी होगा, तो प्रॉपर्टी तो फिर भी रहेगी। तो इफ वी वांट टू गेट रिड ऑफ दिस स्टोन, तो स्टोन से रिलेटेड जो पैरामीटर है यहाँ पे, दैट इज द मास। सो बेसिकली वी वांट टू गेट रिड ऑफ मास हियर। तो हमने क्या किया, एक नई टर्म डिफाइन करी। हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड विद बाय द मास। सो दिस बिकम्स mgh डिवाइडेड बाय m, एंड दैट इज gh। और इसको हमने, ये जो नई टर्म थी, इसको हमने कहा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब देखो ये मास से फ्री हो गई ये नई टर्म, तो पोटेंशियल एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, वेयर एज पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी of a what? What should I write here? Potential energy. Potential is the property of a what? System. Height. Of an object. Body. Of an object having mass. Of an object having mass. Okay. System. Element of a system. An object of unit mass. Field. ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था। पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फील्ड, वेयर एज पोटेंशियल एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। तो अगर सिस्टम नहीं भी होगा तो भी फील्ड हमेशा एग्जिस्ट करेगी। ये फर्स्ट क्लास में एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर फोर्स पहले आती है या फील्ड पहले आती है। तो फील्ड पहले आती है, दैट वी कैन नॉट से। फील्ड इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। फील्ड इज अ कॉन्सेप्ट टू विजुअलाइज द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस अराउंड मैटर, है ना। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो हर ऑब्जेक्ट के आसपास एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है जिसमें इट विल एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट्स, अदर मासेस। तो उस एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को हम फील्ड कहते हैं। फील्ड इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट टू विजुअलाइज कि हाँ इसके आसपास, क्योंकि पहले लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि एक्शन एट अ डिस्टेंस कैसे हो रहा है, राइट। दिस इज एन एक्शन एट अ डिस्टेंस। जब हम अर्थ इज पुलिंग द स्टोन, व्हाट इज हैपनिंग हियर इज दिस इज एक्शन एट अ डिस्टेंस। उससे पहले हमारी जो समझ थी फोर्स की, वो ये थी कि अ पुश और पुल इज कॉल्ड अ फोर्स, यानी कि हमें फिजिकली किसी ऑब्जेक्ट के टच में आना पड़ेगा
to exert force on it. अब ये दूर से कैसे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करने के लिए हमने फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया, राइट। तो हम कहते हैं कि ये जो पोटेंशियल है, जो नया टर्म हमने डिफाइन किया, दैट पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फील्ड। तो अब अगर फिर से हम देखते हैं, दिस इज अर्थ। अब यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट हियर, लेकिन ये जो सारे पॉइंट्स जो एक स्पेसिफिक हाइट h1 पर हैं, लेट अस से दिस हाइट इज h1, और ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं which are at a height h2, तो हम कहेंगे कि ये वाले सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम है एंड वैल्यू ऑफ दैट पोटेंशियल इज g into h1, राइट। वैसे यहां पर जो पोटेंशियल है वो है g into h2। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, इसमें ऑलरेडी ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्लूडेड है। व्हेन वी आर सेइंग दैट अर्थ हैज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट और पुल थिंग्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, राइट। लेकिन अब हम उस चीज को बता रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। अब इस अर्थ के आसपास फील्ड है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, लेट अस कॉल इट ए, और ये वाला जो पॉइंट है, लेट अस कॉल इट बी। तो अब हम ये कह रहे हैं कि इस फील्ड के अंदर पॉइंट ए हैज गॉट मोर पोटेंशियल देन पॉइंट बी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट ए इज मोर देन पोटेंशियल एट बी, राइट। तो हमें यहां पर ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि ये जो नया कॉन्सेप्ट हमने डिफाइन किया पोटेंशियल का, दैट इज जस्ट टू मेक द होल थिंग इंडिपेंडेंट ऑफ अ सिस्टम। वी आर मोर फोकस्ड ऑन फील्ड, सो दिस पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फील्ड, राइट। तो एक ही फील्ड में अलग अलग पॉइंट के पोटेंशियल्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अब क्या होगा, अब I am taking one more analogy here. I have two tanks here. ये कोई टैंक है A और ये कोई टैंक है B. This is a tank. This is a tank. This tank has got water. This tank also has got some water. And I am connecting these two tanks with a pipe. तो यहां पर हम ये देखेंगे कि जो नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर होगा, दैट विल बी फ्रॉम टैंक ए टू टैंक बी। इसके लिए हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। सो दिस इज नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर। इसके लिए हमें कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। सो इट विल फ्लो, द वाटर विल नेचुरली फ्लो from this point which is at higher potential to this point which is at lower potential, right? So natural flow of water is from higher potential to lower potential. इसमें अननेचुरल फ्लो भी हो सकता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक पंप लगाना पड़ेगा, हमें बाहर से उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। We have to do, we have to give it energy from outside. तब क्या होगा, जो flow of water होगा, that will be from lower potential to higher potential, right? तो यहां पर जो अगला क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है कि why does natural flow takes place from higher potential to lower potential? इसमें ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि पानी का नेचुरल फ्लो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल हो? Because it has more energy. Because lower energy state में आ रहा है, and like lower energy state lower its potential energy, water will flow from tank A to tank B. Higher To attain potential stability. unstable Because of the equilibrium होता है। potential energy. Sir, nature always wants stability. Yeah, most of you are correct. Most of you are Stability. A has more potential. Tank A has more potential than tank B.
राइट राइट। to gain minimum मैं कुछ energy. स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, बकुल गुप्ता, आर यू देयर? बकुल, Yes, sir. do you have any answer? Why does the natural flow of water take place from higher potential to lower potential? Just for the stability, as A has more potential energy, so to balance it, water will flow from A to B. गुड गुड। तो पानी ए से बी पर इसलिए जा रहा है क्योंकि ए में उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, बी में वो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। और नेचुरल टेंडेंसी जो होती है हर ऑब्जेक्ट की, दैट इज टू मिनिमाइज द एनर्जी कंटेंट। एनर्जी कंटेंट मिनिमाइज इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उससे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। द मोर एनर्जी अ सिस्टम हैज, द लेसर स्टेबल द सिस्टम विल बी, राइट। तो ये एनालॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो फिनोमिनन है वो एग्जैक्टली इसी तरह का है। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस इन हाइट था, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ था, दिस डिफरेंस इन हाइट इज एनालोगस टू वोल्टेज, जिससे हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस। और इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है, एंड दैट इज एनालॉगस टू फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, राइट। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज एंड इलेक्ट्रिक करंट इज द इफेक्ट। तो हम ये डिफाइन भी कर लेते हैं। सो जैसे हमने वहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन किया, वैसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, that is potential energy per unit charge। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट चार्ज को किसी पॉइंट पर रख दिया जाए तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट, राइट। सो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज measured in volts, और इसीलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ फील्ड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेज। लेकिन एज इंजीनियर्स हमें याद होना चाहिए कि जब भी हम वोल्टेज वर्ड यूज करेंगे, इसका मतलब हम पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज मेजर्ड बिटवीन टू पॉइंट्स, राइट। तो हमें यहां पर यह समझ में आया कि वोल्टेज इज द कॉज एंड करंट इज द इफेक्ट, ठीक है। वोल्टेज इज ऑलवेज मेजर्ड अक्रॉस टू पॉइंट्स, between 2 points, and current is always measured through a point. Voltage is measured with a meter called voltmeter, and current is measured with a meter called ammeter. Both the meters can be implemented with a galvanometer. ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, right? So before we take up the definition of circuits, do you have any questions to ask? ये हमारे लिए सबसे important concept है, concept of voltage and current. Okay, there are no questions, so let us move forward. तो हमने ये देखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज है, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। वर्क डन इज पर यूनिट चार्ज जो हो रहा है, वर्क डन इज इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। और करंट जो है वो हमने देखा कि द नेट चेंज दैट इज टेकिंग प्लेस इन चार्ज।
तो अगर हम वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर दें, ये मैं सिर्फ डायमेंशंस देख रहा हूं कि कैसा है. सो दिस इज वर्क डन पर यूनिट टाइम एंड दैट इज कॉल्ड पावर. एक यूनिट टाइम में कितना वर्क डन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पावर. एंड पावर इज कैलकुलेटेड सिंपली एज इंस्टेंटेनियस पावर. जब हमें कैलकुलेट करना हो, सो दैट इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. अगर मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट डिवाइस है, ये इस डिवाइस के टर्मिनल्स हैं ए और बी. इस डिवाइस के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको मैंने कहा VT. जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं, देयर इज अ डिफरेंस, यानी कि एक पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है दूसरे से, तो जिस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है उसको हम प्लस साइन के साथ शो करते हैं, और जिसका पोटेंशियल रिलेटिवली कम है उसको हम माइनस साइन के साथ शो करते हैं. ये जो प्लस और माइनस है, दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद इलेक्ट्रिक चार्ज. इसका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से कोई लेना देना नहीं, राइट. सो प्लस साइन indicates higher potential and minus sign indicates lower potential. ठीक है. and this plus minus sign, they have got no relation to the charge. तो अगर इस डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज VT है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, और उसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है विच इज IT, तो जो पावर इस डिवाइस को मिल रहा है या ये डिवाइस जनरेट कर रहा है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, दैट पावर इज गिवन एज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट. और यहां पर मैंने दिखाया कि इसका जो डायमेंशन होगा वो वर्क डन पर यूनिट टाइम का होगा. सो दिस पावर इज मेजर्ड इन वॉट्स. सर ये इंस्टेंटेनियस पावर हुई ना सर, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं. हाँ, ये मैं इंस्टेंटेनियस पावर है, इसलिए स्पेसिफिकली आई एम राइटिंग इट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, राइट. सो पावर का फॉर्मूला वोल्टेज इनटू करंट है. ये हमें याद रखना है क्योंकि जो अगला टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ सोर्सेज, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, वहां पर एक नेचुरल क्वेश्चन उठता है कि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के टर्म्स में ही हम क्यों उनको डिफाइन कर रहे हैं. सो आई विल टेक अप दैट पार्ट नेक्स्ट. सो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हमारा जो पर्पस है, ये पूरा कोर्स पढ़ने का जो पर्पस है, दैट इज रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ पावर. सो हमने क्या किया, आई हैव टेकन अ बैटरी हियर. दिस इज अ बैटरी. ये इसके टर्मिनल्स हैं, प्लस माइनस है, मतलब कि ये हायर पोटेंशियल टर्मिनल है और ये एक लोअर पोटेंशियल टर्मिनल है. एंड आई हैव दिस लैम्प हियर. दिस इज अ लैम्प. और हमने क्या किया कि इस बैटरी को इस लैम्प से कनेक्ट कर दिया. सो दिस लैम्प विल ग्लो, राइट. दिस interconnection of components is known as an electric circuit. This interconnection of electric components is called an electric circuit. Now, ये वाला इंटरकनेक्शन करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? हमारा ऑब्जेक्टिव था कि ये जो बैटरी है जिसमें एनर्जी स्टोर्ड है इन टर्म्स ऑफ केमिकल एनर्जी, उसको हम लाइट एनर्जी में चेंज कर सकें, राइट. सो ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट था, इसका पर्पस क्या था? ट्रांसफर ऑफ पावर. प्लीज डोंट एनोटेट हियर. Transfer of power is the objective of this electric circuit, right. ये वाला जो मैंने फिगर बनाया है, ये एक एक्चुअल फिजिकल सिचुएशन को शो कर रहा है. लेकिन अगर जब हम इसी फिगर को बनाएं विद द हेल्प ऑफ symbols, तो then it is known as a circuit diagram. So representation of an electric circuit using respective symbols is called a circuit
डायग्राम। तो इंजीनियरिंग में हमारा जो इंजीनियर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन का तरीका है दैट इज यूजिंग द सर्किट डायग्राम्स। ऐसे हम हर फील्ड में करते हैं। आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पढ़ रहे होंगे इस सेमेस्टर में या नेक्स्ट सेम में पढ़ोगे। सो दैट इज हाउ वी कम्युनिकेट, राइट? एग्जैक्ट टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के साथ जब हमें सिस्टम का डिस्क्रिप्शन देना होता है तो हम डायग्राम्स यूज करते हैं। इट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ योर लैंग्वेज, ऑफ द काइंड ऑफ ड्राइंग्स दैट यू कैन मेक, ड्राइंग्स ऑफ द एक्चुअल फिजिकल सिस्टम्स। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंपल सिंबल्स की हेल्प से सेम सिस्टम को मैंने रिप्रेजेंट किया है। सो दिस इज द बैटरी एंड दिस रेसिस्टेंस रिप्रेजेंट्स दिस बल्ब। सो दिस इज अ सर्किट डायग्राम। हम ये पॉइंट याद कर लें। द पर्पस ऑफ हैविंग अ सर्किट इज ट्रांसफर ऑफ पावर। इसीलिए हम इतना सारा तामझाम कर रहे हैं ताकि हम पावर को ट्रांसफर कर सकें। इलेक्ट्रिक पावर इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर। इसको हम बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए हम आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप इसको किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज कर सकते हो और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज को इजीली इलेक्ट्रिक फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज किया जा सकता है, राइट? तो हमने मेजर अभी दो चीजें पढ़ी है। सबसे पहला, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, जिसके कारण सब कुछ हो रहा है। चार्ज को हमने डिफाइन किया एज द फंडामेंटल एज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ नेचर ड्यू टू विच दे इंटरेक्ट विद ईच अदर बाय एक्सर्टिंग फोर्स। तो इसी चार्ज का जो फ्लो है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फिर हमने देखा कि चार्ज फ्लो होता ही क्यों है। द चार्ज फ्लोज ड्यू टू डिफरेंस इन पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में वोल्टेज कहते हैं क्योंकि पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट है। पोटेंशियल को हमने डिफाइन किया एज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इन अ गिवन फील्ड। सो दिस पोटेंशियल एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, whereas potential is the property of a field, right? So now we are ready to understand the concepts related to circuits. अब हम आते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट पे जो हमें समझना है, that is related to circuits. तो सर्किट्स में हमने ये देखा कि जो पर्पस है दैट इज ट्रांसफर ऑफ पावर। हम चाहते हैं कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो। तो जो मेजर सर्किट कंपोनेंट्स होते हैं जो किसी भी सर्किट में हमेशा होंगे, वो होगा एक या एक से ज्यादा सोर्स और एक या एक से ज्यादा लोड, राइट? सो सोर्स इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, कोई भी एक गिवन फॉर्म, टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। For example, a battery. Yes. Somebody has a doubt? Sir, yes, sir. हाँ जी बेटा। Sir, you said that charge is the intrinsic property of a fundamental particle. हाँ जी। नॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, उनको भी तो चार्ज हो सकता है। बता रहा हूँ। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। You said that जो नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स है उनका भी प्रॉपर्टी हो सकती है, राइट? हाँ सर, मतलब फंडामेंटल तो सबसे सिंपलेस्ट पार्टिकल होगा ना, कोई मैटर पे भी तो चार्ज हो सकता है। ओके, कोई एड्रेस करना चाहेगा क्या इस पॉइंट को? His point is that ये प्रॉपर्टी तो मैटर की वैसे भी हो सकती है. Why you are calling it fundamental particle? Matter also consists of electrons and charge. तो जो मैटर है वो भी तो फंडामेंटल पार्टिकल्स का ही होता है. हाँ, They are called fundamental particles because all of the matter is made of it. हाँ, देखो ये जो प्रॉपर्टी है वो मैक्रो स्केल पे आपको दिखेगी नहीं वैसे. फॉर एग्जाम्पल, आई एम होल्डिंग अ पेन. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. मेरे साथ जो को होस्ट है, प्लीज म्यूट एवरीबॉडी सो दैट. Okay, so
ये जो प्रॉपर्टी है जो हम इसको जब हम जब हम इस प्रॉपर्टी को हम डिफाइन जब हम इसको करना चाह रहे हैं तो वो डिफाइन करना इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आई एम होल्डिंग अ पेन. नाउ दिस पेन मे बी चार्ज और मे नॉट बी चार्ज डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल कंडीशन. अगर मेरे पास कोई मान लो प्लास्टिक का स्केल है, मैंने उसको एक ड्राई सरफेस पे रब किया, तब वो ये वाली प्रॉपर्टी शो करेगा कि दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा. लेकिन नॉर्मली अगर ऐसा नहीं करूंगा तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा. तो ये उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी एक्चुअली है नहीं. लेकिन जब हम उसको ब्रेक डाउन करते चले जाएंगे और जब हम फंडामेंटल पार्टिकल्स तक पहुंचेंगे तो ये उनकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी हमेशा रहेगी. एन इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज कैरी अ चार्ज. लेकिन एक पेन जो है या एक स्केल जो है प्लास्टिक का, इट मे और मे नॉट कैरी आई मीन नेट चार्ज. वो उसके अंदर के पार्टिकल्स को हम देखेंगे तो हमें चार्ज दिखाई देगा, लेकिन जब ओवरऑल उसका नेचर देखेंगे तो वो न्यूट्रल है, इट हैज गॉट नो चार्ज. इसलिए जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो हम उसको फंडामेंटल पार्टिकल्स के टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं, बिकॉज अ फंडामेंटल पार्टिकल विल ऑलवेज हैव दिस प्रॉपर्टी, राइट? अगर हम इसको मैटर के टर्म्स में डिफाइन करें तो मैटर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है नेट चार्ज. यस सर. ठीक है. सो एक ऐसा डिवाइस जो एक गिवन फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करे, उसे हम बैटरी कहते हैं. उसे हम सोर्स कहते हैं. उसके एग्जांपल है बैटरी विच इज कन्वर्टिंग chemical energy into electrical energy. We have many more such examples. For example, a generator converts mechanical energy into electrical energy. A solar cell converts light energy into electrical energy. Right? Load जो है वो इसका just opposite है. A load is a device. हाँ जी, दिव्रित, ask your question. Divrit Kaur, you raise your hand, please ask your question. So load is a device which converts electrical energy into some other useful form of energy. Load is always required क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को हम डायरेक्टली कभी यूज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू कुक राइस. तो राइस कुक करने के लिए मैं ये नहीं कर सकता कि बैटरी के जो 2 टर्मिनल्स हैं उनको राइस के बीच में लगा दिया और राइस कुक हो जाएगा. मुझे वो जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसे मुझे हीट एनर्जी में चेंज करना पड़ेगा, राइट? सो लोड डज दैट वर्क फॉर अस. सो फॉर एग्जाम्पल, अ बल्ब is a load. It converts electrical energy into light energy, right? A motor is a load. It converts electrical energy into mechanical energy. ऐसे बहुत सारे examples हैं. A heater, it converts electrical energy into heat energy, right? A refrigerator, it converts electrical energy into. Ayush Das, are you there? Yes sir. रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं? बंधन, आर यू देयर? Yes, sir. आर यू एबल टू फॉलो व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. तो बताओ, रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज कर रहे हैं? Sir, heat energy में. हीट एनर्जी. जानवी, you raised your hand. Sir, I had a doubt. हाँ जी बेटा. So we said the device which converts electrical energy into some other useful form of energy. But at the same time, say bulb, it converts into heat energy also, which is not useful. The motor, say noise energy, it is wasting energy also. Right. So is it right to use the word useful over there? Yeah, the word useful, basically it indicates that we already have an identified application and intended application of that device. Okay, sir. Right? हमारे intended application वहाँ पर
लाइट एनर्जी है, तो हम जो मतलब जो उस डिवाइस का जो मेजर फंक्शन है वो यही है। ऑल्दो ऑल ऑफ इट विल नॉट बी यूज्ड, ऐसा हर डिवाइस में होगा। जैसे हम किसी मोटर में जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं, तो वहां पर भी ऐसा होगा कि सम अमाउंट ऑफ हीट विल आल्सो बी जनरेटेड, राइट। तो ये जो लॉस है एनर्जी का, ये तो होगा ही होगा, बट स्टिल जो हमारा मेजर पर्पस है वो हमने वहां पर आइडेंटिफाई कर लिया कि उसको किस फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करना है, राइट। सो आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। सो रेफ्रिजरेटर में हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज नहीं कर रहे हैं। What we are doing is we are using a compressor. छोटा सा example I am taking. So this is inside of a refrigerator, and we have tubes running inside this refrigerator. और इन tubes में हम gases flow करते हैं. These gases, they go inside the refrigerator. They absorb heat from it, and due to absorption of heat, they expand, they come outside the refrigerator in the tubes, और ये जो heat है ये बाहर जो atmosphere है, that acts like a sink for this heat, right? तो ये जो gases को जो हम circulate कर रहे हैं, उसके लिए हम एक device use कर रहे हैं, we are calling it a compressor, right? तो ये compressor जो है वो क्या कर रहा है, circulate कर रहा है इन गैसेस को, और उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, उसके लिए उसको मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, और वो मैकेनिकल एनर्जी जो है उसको एक मोटर से मिल रही है। सो कंप्रेसर के साथ ही एक इनबिल्ट एक मोटर है जो उसको रोटेट कर रहा है। इट इज लाइक अ पंप, लेकिन यहाँ पर जो फ्लूइड है वो लिक्विड नहीं है, इट्स नॉट वाटर और एनी अदर लिक्विड, इट इज अ गैस। तो रेफ्रिजरेटर में हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करके उसका यूज कर रहे हैं। सिमिलर थिंग हैपेंस इन एन एयर कंडीशनर। तो ये जो सारे डिवाइस हैं, these devices are called loads. तो आप लोगों ने जो फर्स्ट लेक्चर, जो वीडियो लेक्चर सुना, that describes various characteristics of these sources and these loads. तो जिन स्टूडेंट्स ने ये वो लेक्चर नहीं सुना है, मैं once again मैं ग्रुप में वो लिंक शेयर करूंगा, प्लीज लिसन टू दैट लेक्चर वंस, और कल की क्लास में we will take up this complete description of sources and loads. वो extremely important है, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो सिंबल्स हम यूज करेंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उस सोर्स का, वो हम देखेंगे कि हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ अ सिंबल, राइट। तो हम न्यूमेरिकल्स भी हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हम एग्जैक्टली समझेंगे कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, राइट। डज एनीवन हैव एनी डाउट? प्लीज आस्क। So kindly can you please explain the refrigerator part again, how it works? Okay. See, refrigerator में हम चाहते क्या हैं कि inside this cabinet there is heat, right? और हम क्या चाहते हैं, हम इस heat को extract करना चाहते हैं. This is the objective, right? ये heat को extract हम कैसे करेंगे? Just excuse me. Bhavya Kumar, do you have any doubt? Sorry sir, by mistake hand raise हो गया था. Okay, ठीक है. Sorry. But it's good. We are awake. That's good. So हम क्या चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये हीट को हम एक्सट्रैक्ट कर सकें. ये हीट एक्सट्रैक्ट कैसे होगी? हमने क्या किया, इन ट्यूब्स में गैस को सर्कुलेट किया. ये गैस जब इस कैबिनेट के अंदर से जा रही है, तो वो क्या कर रही है, इस हीट को एब्जॉर्ब कर रही है. हम ऐसे गैसेस को चूज कर रहे हैं विच इजीली एब्जॉर्ब हीट, राइट. तो इस गैस ने क्या किया, इस हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, और इन गैसेस को हम पुश कर रहे हैं यहाँ से एंटर होने के लिए. और क्योंकि ये क्लोज्ड पाथ है, तो जब हम यहाँ से इसको पुश कर रहे हैं एंटर होने के लिए, तो यहाँ से नेचुरली ये बाहर आ रही है. तो वर्क इज बीइंग डन बाय दिस डिवाइस, जो कि एक कंप्रेसर है. तो यहाँ से नॉर्मल गैस जो है वो अंदर गई, कैबिनेट के अंदर जाकर उसने हीट को एब्जॉर्ब किया. फिर ये गैस इस कैबिनेट से बाहर आ गई, रेफ्रिजरेटर से बाहर आ गई, और बाहर जो है वो एटमॉस्फेयर है. इतना बड़ा एटमॉस्फेयर है कि इसका टेम्परेचर इन गैसेस के टेम्परेचर से कम है. तो वो एक टेम्परेचर डिफरेंस है. टेम्परेचर डिफरेंस है तो क्या होगा, जो हीट होगी वो इस गैस से इस एटमॉस्फेयर में चली जाएगी.
राइट। तो ये गैस क्या होगी, फिर से कूल हो जाएगी एटमॉस्फेयर को वो हीट ट्रांसफर करके, फिर से ये कूल होकर गैस वापस रेफ्रिजरेटर के अंदर जाएगी। लेकिन रेफ्रिजरेटर के अंदर तभी जा सकती है जब ये कंप्रेसर इसको कंप्रेस करेगा। तो दैट इज द फंक्शन बीइंग परफॉर्म्ड बाय दिस कंप्रेसर। तो हम लोग क्या करें, हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर है उसके साइड वाले पार्ट को या ऊपर वाले पार्ट को जब आप टच करोगे तो वो हमेशा गर्म होगा, राइट। अंदर से वो ठंडा है, साइड से और ऊपर से वो गर्म होगा। और अपने रेफ्रिजरेटर में आप देखोगे तो वहां पर ये नोट लिखा भी होगा कि इफ द साइड्स गेट हीटेड अप इट इज अ नॉर्मल थिंग। वो नॉर्मल थिंग क्यों है, क्योंकि वो हीट जो है वो जस्ट उसके बाहर आकर डिसिपेट होगी। तो ये सारा फंक्शन करने के लिए यू नीड अ कंप्रेसर, और इस कंप्रेसर को चलाने के लिए यू नीड इलेक्ट्रिसिटी। इज इट क्लियर? Excuse me, sir. हाँ जी आदित्य। Thank you. So some students are saying that they have a class. Yeah, I'm just going to class. I'm just going to. Okay, sir. Okay. ठीक है, thank you very much. I'll see you tomorrow, right? Thank you, sir. Thank you, sir.